Okay, now we'll be doing your bulkheads as per construction. We've got two types. One is plain bulkhead and one is corrugated bulkhead. The plain bulkhead, which I had shown you in the forepeak, is stiffened by rolled sections. Uh, these sections we'll be doing later. Steel sections we'll be doing later. So roll sections are bulk plate. Roll section means made for rolled steel. Steel basically is bought in rolled sheets. So when your plates are cut from rolled sheets, they'll form bulk plates. And the space between these stiffeners or bulk plates is 760 apart. Let me explain how it is 760 apart. Now this is a plain bulkhead. And the plain bulkhead basically is made of various strips of plate. So you'll see a blue, this cream and then light green and violet and gray. So the top plating is of thicker, then the thickness of the plates is increasing when we go bottom because of hydrostatic pressure. The plates are welded seam. Seam means horizontal welds are there. These are your vertical stiffeners or bulk plates on the bulkhead. Distance between these stiffeners is 760 So these are rolled steel plates and the distance between these stiffeners is 760 Now the thickness of the plate which I have shown is more at the bottom because of maximum hydrostatic pressure experience. This thinnest at the top, not less than 6.5 thick. And the plate is in the horizontal direction. When the depth of bulkhead is more, your horizontal stringer is placed with face plate and tripping bracket. I'll just show you that. When your depth of bulkhead is more, you'll have face plate and tripping bracket. Now suppose this is the bulkhead, then the stringer plating is there. So this is the stringer plating and this is the face plate in front and this is the tripping bracket. So this is your stringer plate, this is the bulkhead, this is the tripping bracket, the green structure bracket. The front plate is known as face plate. I'll show you one more diagram to make you explained here what is it. Let's see where the diagram is. Now suppose this is the bulkhead. This is your stringer plate. So this is your tripping bracket which is supporting your stringer plate and there is a face plate in front of the stringer plate. So this is your longitudinal bulkhead. This can be a transverse bulkhead where your stringer plate is like this. You have a face plate in the black in front, the tripping bracket here. So these are the two types of stringer plate. One is horizontal stringer plate or transverse stringer plate and one is a 4.5 stringer plate. So this is your tripping bracket supporting the stringer plate. In front you have the face plate.
Now the plates are laid in the horizontal direction. Now I had shown you one diagram. Now I'll show you again how they are laid in the horizontal direction. So these plates, the rolled steel plates are laid in horizontal direction and they are welded by seam. Seam welds are at the edges. So there is a seam welding here. There's a seam welding here. Similarly here. The top thickness 6.5, 7.5, 8.5, 10.5, 11.5. Thickness is increasing because of hydrostatic pressure. So when the depth of bulkhead is more, horizontal stringer is fitted with faceplate and tripping bracket, which I have explained. So this is your plain bulkhead. And these are your stiffeners fitted here. These are the stiffeners fitted on the plain bulkhead. The distance between the stiffeners or rolled sections is 760 mm. So these are your stiffeners, which are top view, and this is the front view. So here you have a watertight floor. The welding between the plates 6.5, 7.25, 8.5, 9.5, and 11.5. The welding is seam welding. So this is a twin deck. So this one is a general cargo vessel with a twin deck. Side view, this is the front view, this is the top view, this is the side view. The side view, this is the deck longitudinal. This is your bulkhead, plain bulkhead, twin deck, stiffener here, bracket is here, full stiffener, watertight bulkhead, bracket below, watertight below. Elevation means side. This is now plan view or top view. You're looking from top, bird's eye view. This one is a bird's eye view. So now this is a 3D diagram where you have these are your this is a watertight bulkhead here, the twin deck here, pillars here. These are your beams, the gunwale here, and the shear strake, beam knee. These are your twin deck beams, and these are your frames. This is the margin plate. This one is margin. This one is your watertight floor, because these are going athwart ships. These are athwart ships. Now this is your centerline girder, and these are the other girders, intercostal girders. So this is the intercostal girder, centerline girder, a bracket floor. Here the flanging is done. So the flanging is done at the. Now this is a transverse framing. So the flanging is done here, flanging is done here, and the frame is there for bracket floor. Now if you see the partitions made on the ship, these are the transverse bulkheads, these are the longitudinal bulkheads. Now these are the attachment, corrugated attachments. So if it's passing, this is made watertight, or any pipe passing like this. These are the bulkhead attachments. So this is your stringer plate, the face plate and the tripping bracket. It can be on top or it can be below. Main purpose of tripping bracket is to support your stringer plate. Now we come to corrugated bulkhead. Now during your school time, in your small classes, you might have made fans with paper. फैन बनाया है क्या? पंखा बनाया ना कागज का? यानी बचपन में बनाया होगा. पंखा बनाया ना कागज का? तो वही कोरोगेटेड है. अगर आपने वो पंखा बनाया और उसको थोड़ा खोल दिया, तो उसके ऊपर कुछ भी रख सकते हो, बेंड नहीं होगा. उसमें स्ट्रेंथ होती है. कागज में ऐसे ही रखोगे तो बेंड हो जाएगा कागज.
लेकिन कोरोगेटेड बना दोगे जैसे पंखे बनाते हो तो उसमें स्ट्रेंथ रहती है। जैसे आपके गांव में छत के ऊपर वो परछत्ती लगती है और पानी वहां से फ्लो कर जाता है, वो कोरोगेटेड होता है। प्लेन छत्ती लगाओगे तो बेंड हो जाएगा। तो सिमिलरली इफ यू यूज कोरोगेटेड बल्कहेड, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लेन बल्कहेड। एंड कोरोगेटेड बल्कहेड में नंबर ऑफ स्टिफनर्स को कम लगाना पड़ता है बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ बल्कहेड नंबर ऑफ स्टिफनर कम लगाना पड़ता है, क्या कम हो जाएगा? स्टील कम हो जाएगा तो क्या फायदा होगा आपका? अगर आपने स्टील कम लगाया तो फायदा क्या होगा आपका? स्ट्रेंथ बराबर है, क्या फायदा होगा? वो ज्यादा लोड कर सकते हैं? क्या होगा फायदा? स्टेबिलिटी में क्या फायदा होगा? डेड वेट बढ़ेगा, लाइट शिप कम होगा। समर डिस्प्लेसमेंट वही है, लाइट शिप कम होगा तो डेड वेट बढ़ेगा, मतलब कार्गो ज्यादा लोड कर सकते हैं। तो हमारा स्टील वेट कम होगा तो लाइट शिप वेट कम होगा, हम स्टील कार्गो ज्यादा लोड प्लस आपके पैसे बचेंगे, स्टील कम होगा तो स्ट्रेंथ तो बराबर है। तो कहीं भी अगर आपका कोरोगेटेड होगा तो हम एक पिलर लगा के वो स्टिफनर से इतना लगाने की जरूरत नहीं, एक पिलर लगा दिया साइड में कोरोगेशन के साथों साथ। तो इससे क्या होगा, वर्टिकल स्टिफनर लगाने की जरूरत कम पड़ जाती है जो आपके प्लेन बल्कहेड में लगता है। तो आपकी सेविंग हो रही है स्टील वेट में, कॉस्ट ऑफ स्टिफनर भी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ स्टिफनर कम हो रहा है, स्टील वेट भी कम हो रहा है, कार्गो अब ज्यादा लोड कर रहे हो। अब क्या होता है, कोरोगेशन की जो एंगल है वो 45 डिग्रीज होती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कोरोगेशन की एंगल 45 डिग्रीज कैसे होती है। मैं बनाया नहीं तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कोरोगेटेड बल्कहेड, बनाया हुआ इसने। तो सपोज ऐसा कोरोगेशन है, तो कोरोगेशन का अगर एंगल देखा जाए, ये 45 डिग्रीज है, ये 45 डिग्री है। तो जब भी हम 45 डिग्रीज पे रखते हैं हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम वेव आगे से आ रही है, हमने 45 डिग्रीज टर्न किया, हमारा रोलिंग कम हो जाती है। तो यहाँ हमने 45 डिग्रीज पे स्टील लगाया तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ कोरोगेटेड बल्कहेड में ऐसे बट वेल्डिंग होती है सीधे सीधे, मतलब यहाँ 45 डिग्रीज आया, सीधा आया, 45 डिग्रीज आया, फिर सीधा आया, फिर 45 डिग्री आया, फिर सीधा आया, फिर 45 डिग्रीज आया, तो ऐसे सीधा आया 45 डिग्रीज, परपेंडिकुलर से 45, फिर सीधा आया, फिर 45, फिर सीधा आया, फिर 45, फिर सीधा, फिर 45, फिर इधर भी आपका 45 बना, फिर सीधा आया। ऐसे आपका कोरोगेशन होगा। तो यहाँ जो वेल्डिंग होगी वो ऊपर से नीचे तक होगी वेल्डिंग, इसको हम कहते हैं बट वेल्ड। अगर हम हॉरिजॉन्टल वेल्ड करेंगे तो उसको हम कहते हैं सीम वेल्ड, और जो वर्टिकल वेल्ड वी डू इज नोन एज बट वेल्डिंग। सो कोरोगेटेड बल्कहेड में बट वेल्डिंग होती है। ऐसे ही दिखाया हुआ है, ये 45 डिग्रीज आपका एंगल ऑफ कोरोगेशन है, और यहाँ आपकी वर्टिकल बट वेल्डिंग ऐसे होती है, यहाँ वर्टिकल बट वेल्डिंग। अब क्या होता है कि क्योंकि कोरोगेशन है तो दब सकता है, तो बीच में डायफ्राम प्लेट लगेगी टू कीप द कोरोगेशन इन प्लेस। अब ये डायफ्राम प्लेट आपको दिखाएं, तो सपोज ये कोरोगेशन बन रहा है तो इसके बीच में कभी कभी प्लेट्स लगा देते हैं, स्ट्रिंजर प्लेट टाइप के, सो दैट ये कोरोगेशन दबे ना। तो ये टाइप की प्लेट्स लगाते हैं, इसको कहते हैं डायाफ्राम प्लेट्स। जैसे आपका डायफ्राम होता है
डायफ्राम आपके क्या क्या टाइप के आ जाते हैं? आपका जो हारमोनियम है वो भी डायफ्राम है, अकॉर्डियन है वो भी डायफ्राम है। तो हम बीच में कोई बीच में जगह कुछ लगा देंगे तो वो डायफ्राम दबेगा ही नहीं। लेकिन वो तो अकॉर्डियन तो हमें बजाना है, हारमोनियम बजाना है, तो हम बीच में थोड़ा ना लगाएंगे कुछ। लेकिन यहाँ शिप में यू कैन हैव these kind of diaphragm plates to prevent the corrugation from sticking to each other. ये नहीं तो दब जाएंगे। So you have diaphragm plates to increase stiffness. अब ये आपकी corrugated bulkhead है। तो नॉर्मली हमारे corrugated bulkhead जो बल्क कैरियर में है उनमें diaphragm plates कभी नहीं होती हैं, तो शडर प्लेट नीचे लगी होती है। अब ये शडर प्लेट क्या चीज़ है? ये शडर प्लेट लिखा हुआ है, किसी को पता है शडर प्लेट का मतलब क्या है? शडर प्लेट क्यों होती है? बल्क कैरियर वाले कितने लोग हो? हैं, बल्क कैरियर आपने काम किया है? होल्ड में गए हो? कोई नहीं सर। है बल्क कैरियर? यस सर। तो कोरुगेटेड बल्कहेड देखा है कि नहीं देखा है? यस सर, देखा है। देखा है। देखा स्टूल प्लेट, स्टूल प्लेट देखी है? स्टूल प्लेट क्या होती है? स्टूल प्लेट क्या फायदा है? स्टूल प्लेट का क्या फायदा? स्टूल प्लेट का क्या फायदा? भाई स्टूल प्लेट आपके, तो आप तो स्टूल घर में रखते हो, वो स्टूल तो बैठने के लिए, पर यहाँ कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ स्टूल प्लेट होती है विच इज वाइड स्पेस, इसके नीचे कोई उसका कोई काम नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई कार्गो आएगा तो वो स्लाइड कर जाएगा, ग्रैब लगेगा स्लाइड कर जाएगा। तो स्टूल प्लेट होती है ग्रैब्स को स्लाइड करने के लिए। को हम ग्रैब से पकड़ेंगे तो यहाँ मारेगा नीचे तो आपका बेंड हो जाएगी प्लेट, तो स्टूल प्लेट से स्लाइड करेगा। उसी तरह शडर प्लेट होती हैं कोरुगेटेड बल्कहेड में। ये देखो शडर प्लेट है। तो शडर प्लेट क्या होती है? ये कार्गो फंसने नहीं देगी। कई बार आपको आपके दांत में कई चीजें फंस जाती हैं तो आप टूथपिक लगाते हो निकालने के लिए ना, लेकिन इधर कार्गो फंस गया आपके कोरुगेशन में तो कैसे निकालोगे? ग्रैब से तो निकलेगा नहीं। तो इसको थोड़ा सा एंगल में रखते हैं प्लेट। ये जो प्लेट है ना ये एंगल में रहेगी तो कोरुगेशन में फंसेगी नहीं और स्लाइड कर जाएगी। तो शेडर प्लेट का काम है कार्गो को शेड ऑफ करना, टूल प्लेट का काम है वो शेड ऑफ करेगा, नीचे स्लाइड करेगा, ग्रैब्स को भी स्लाइड कराएगा। क्लियर है शेडर प्लेट क्या है और स्टूल प्लेट क्या है? ये क्लियर हो गया क्या? अभी भी नहीं क्लियर है? शेडर प्लेट का मतलब है इसके कोरुगेशन के नीचे एक प्लेट लगी होती है, ये वाली प्लेट जो एक एंगल पे लगी होती है। तो कोई भी कार्गो गिरेगा तो इसके अंदर से स्लाइड करके बाहर आ जाएगा, तो यहाँ फंस जाएगा कॉर्नर पे। और स्टूल प्लेट ही स्लाइडिंग होती है। अगर आपको स्टूल प्लेट और दिखाऊं, चलो आपको दिखा देता हूँ एक और डायग्राम में, स्टूल प्लेट समझ आएगा आपको। 13 है ना। अब ये वाली 3D डायग्राम है। तो यहाँ आपकी फ्रेम लगी है, बल्क कैरियर है, ये फ्रेम लगी है, ये हॉपर की प्लेट है, हॉपर टैंक उसकी प्लेट है, ये लोअर हॉपर टैंक की प्लेट है, ये अपर हॉपर टैंक की प्लेट है, ये कोरुगेटेड बल्कहेड है। इधर में लगा स्टूल प्लेट और कोरुगेटेड के बीच में ये लगी है शडर प्लेट। तो शडर प्लेट एंगल पे है तो कार्गो विल स्लाइड ऑफ। स्टूल प्लेट भी एंगल में है तो ग्रैब जो लगेगा वो भी स्लाइड ऑफ करेगा और बैंग नहीं करेगा। ये नीचे जगह जो होती है खाली होती है उसको कहते हैं वाइट स्पेस। अब क्लियर है कि शडर प्लेट क्या है? क्या नहीं क्लियर है? आप ये खाना वाना खाया था कि नहीं? आवाज बंद हो गई आप लोगों की। खाना खाया कि हंसती रहे? खाना नहीं खाया?
खाली पेट बैठे हो, आवाज बंद होगी आप लोगों की। हैं? खाने के बाद क्या आवाज बंद हो जाती है, क्या आती है तेज? एनर्जी लेवल डाउन हो गया आपका? हैं? नींद आ रही है? नहीं सर। हैं? नो सर। नींद आ रही है? मुझे तो लग रहा है नींद आ रही है, तो आवाज सबकी बंद हो गई। नो सर। अरे भाई, जो बल कैरियर में है, ये शेडर प्लेट ये है, स्टूल प्लेट ये है, ये हॉपर प्लेट है, ये टैंक टॉप है, ये डीबी टैंक है। ये बाद में कराएंगे आपको, पहले ये समझ लो कि ये कोरोगेटेड बल्कहेड क्या है। ये कोरोगेटेड बल्कहेड है। अब आपको ये डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है ये डायग्राम बनाओ। तो ये टॉप व्यू है, इसमें टॉप व्यू में स्टिफनर हो सकते हैं, बगैर स्टिफनर के भी हो सकता है। ये नहीं कि स्टिफनर हैं, इस डायग्राम में है, बट कोरोगेटेड बल्कहेड में आजकल कोई स्टिफनर लगाता ही नहीं है। तो ये टॉप व्यू है कोरोगेशन का, और ये फ्रंट व्यू है। इसमें इन्होंने ट्विन डेक बनाया है, यहाँ ट्विन डेक बना दिया। तो जो कोरोगेशन के साइड साइड ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे दिखना है। आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये जो लाइन है, इन्होंने इसके ऊपर जो लाइन है, इसके कोरोगेशन अलग है, इसके कोरोगेशन अलग है, बट आप सेम ही कोरोगेशन बना सकते हो ऊपर से नीचे तक। लाइन खींचनी है यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे हर जगह से जहाँ जहाँ टर्न हो रहा है वहाँ वहाँ से लाइन खींचनी है। और यहाँ वेल्डेड बट होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक वेल्डिंग हो रही है। स्टिफनर कई जहाज में है, कईयों में नहीं है। डायग्राम है तो आप इसी डायग्राम के जैसे बनाओगे। साइड व्यू में दिखाया है कि ये आपका ट्विन डेक स्टिफनर बना हुआ है, नीचे में आपका होल्ड स्टिफनर है, और कोरोगेशन बना हुआ है। तो यहाँ ब्रैकेट होल्ड कर रहा है ट्विन डेक को, ऐसे कोरोगेशन जारी। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इसी तरह कोरोगेटेड बल्कहेड ये भी दिख रहा है। यहाँ आपका शेडर प्लेट है, और ये स्टूल प्लेट है, और ये कोरोगेटेड बल्कहेड है। ये बल्क कैरियर है, जिसमें दीज आर द फ्रेम्स। ये हॉपर प्लेट है नीचे की, ये हॉपर प्लेट ऊपर की है। टॉप साइड टैंक है एंड बॉटम हॉपर टैंक। अब आता है डक कील। तो डक कील होता है, नॉर्मली टैंकर में डक कील नहीं होगा, अनलेस वो टैंकर बल्क कैरियर से बना हो। तो डक कील बनता है क्योंकि हमने सेंटर लाइन बल्कहेड के बजाय सेंटर लाइन गर्डर के बजाय दो और गर्डर यूज किए, जिनकी स्पेस मैक्सिमम होगी 3 मीटर अपार्ट। अब वो हमने यूज किए ड्राई डॉकिंग के लिए। तो फिर उन्होंने शिप बिल्डर्स ने ये सोचा, ये नेवल आर्किटेक्ट ने सोचा कि जब हमने 2 गर्डर लगा दिए इंस्टेड ऑफ 1, ये जगह तो खाली होगी, इसको क्या करेंगे। फिर उनका आइडिया है कि इसके थ्रू हम पाइपलाइन पास करेंगे, क्योंकि बल्क कैरियर में पाइपलाइन अगर होल्ड में रहे तो वो तो टूट जाएगी क्रैब डिस्चार्ज में, तो उनको यहाँ से पास करेंगे। तो कंटेनर में, बल्क कैरियर में, जनरल कार्गो में ये जो एरिया है, इसमें आपकी पाइपलाइंस आएंगी। टैंकर में नहीं आएगी, क्योंकि टैंकर में तो टैंक है, उसमें तो आपका क्रैब तो नहीं जाएगा, आपको तो पंप से डिस्चार्ज करना है, तो उसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो डक कील विल बी ऑन अदर वेसल्स अदर देन टैंकर्स। इवन गैस कैरियर्स में डक कील है। तो ये डक कील आप गए हो, कोई इसमें गया है या ऊपर ऊपर से देख के आ गए? हाँ भैया, गए हैं। तो खड़े, इसमें चलना बड़ा मुश्किल है, लेट के जाना पड़ता है,
रेल बनी होती है, प्लेटफॉर्म सा होता है, वो रेल पे चलती है, तो आपको सिर बचाना पड़ता है क्योंकि इसमें कई प्रोजेक्शन सिर पे लगेंगे जोर से। अकॉर्डिंगली आपको जाना पड़ता है। पाइपलाइंस इसमें होती हैं, हाइड्रोलिक लाइन भी इसमें होती है, तो वो चेक करने के लिए आपको डक्कील में जाना पड़ता है। एंट्रेंस होगी इंजन रूम से, आगे निकलेगा फोरपिक स्टोर में निकलेगा। अब ये आपके स्ट्रिंजर प्लेट्स, ये आपका डेक स्ट्रिंजर आ गया, और बाकी स्ट्रेक्स आ गए जो आपके शेल प्लेटिंग में है। तो नीचे वाला जो है वो कील प्लेट आ गई। ऑन बोथ साइड ऑफ द कील प्लेट इज गार्बोर्ड स्ट्रेक, और उसके ऊपर जाता है बी स्ट्रेक, फिर सी स्ट्रेक, फिर डी स्ट्रेक, फिर ई स्ट्रेक, फिर एफ स्ट्रेक, फिर जी स्ट्रेक। आई और ओ नहीं होते हैं, वो शेल एक्सपेंशन प्लान में आपको समझाएंगे क्यों नहीं होते हैं। तो ये आपका डेक स्ट्रिंजर आ गया और शीयर स्ट्रेक के साथ कनेक्ट होता है। फिर दिस इज योर डेक प्लेटिंग, दिस इज योर लॉन्जिट्यूडनल गर्डर्स दैट कील। अब आपका किल्सन भी बोल सकते हैं इसको सर। क्या चीज? सेंटर किल्सन सर। सेंटर क्या? ये बोट है, सेंटर जहाज में। किल्सन। ओके सर। कीलसन बेसिकली ये तो बोट है ना, बोट में कीलसन होता है, और Yes, जहाज sir. में कीलसन नहीं होगा। यहाँ आपका गर्डर आ जाएगा, सेंटर गर्डर आ जाएगा। ये बोट है, ये बोट में ऐसा बनाया हुआ है। जहाज में तो ये इंस्टेड ऑफ कीलसन यू विल हैव सेंटर गर्डर। अभी आपको Yes, मिडशिप सेक्शन कराएंगे तो समझाएंगे पूरा। अब आता है शियर स्ट्रेक जो साइड में लगा, जिसको आप फिश प्लेट बोलते हो। तो ये फिश प्लेट नहीं है, इसको कहते हैं शियर स्ट्रेक, ये वाला। तो ये डेक स्ट्रिंजर शियर स्ट्रेक के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये शियर स्ट्रेक का पोर्शन है। अब ये राउंडेड होता है। बड़े जो बल्क कैरियर्स हैं, टैंकर्स हैं, वीएलसीसी में राउंडेड शियर स्ट्रेक होता है, और बाकियों में आता है स्ट्रेट शियर स्ट्रेक। ये स्ट्रेट शियर स्ट्रेक। अब आता है डेक फ्रीइंग अरेंजमेंट्स। तो ये बुलवर्क है, बुलवर्क के नीचे ऐसे कट लगा होता है ताकि पानी जो आए निकल जाए, इसको फ्रीइंग पोर्ट कहते हैं। अब कुछ शिप्स में क्या होता है, ये फ्रीइंग पोर्ट के आगे भी हिंज लगा है, तो हिंज खोल के इसको रिलीज कर दिया, वापस लगा दिया, फिर वो डेक्स कवर से पानी निकल जाए। तो ये फ्रीइंग पोर्ट इसके नीचे होता है बुलवर्क के टू रिलीज। अगर आपकी रेलिंग लगी है तो फ्रीइंग पोर्ट की जरूरत ही नहीं है। ये तब होता है जब आपका बुलवर्क है, ठीक है, बुलवर्क के नीचे फ्रीइंग पोर्ट। अब बिल्ज पाइपिंग अरेंजमेंट आपके शिप में होती है, जो आपने एसएसटीपी में बनाया था कि नहीं? एसएसटीपी में रिकॉर्ड बुक दी होगी, प्लान्स बनाए थे, तो बिल्ज एंड बैलास्ट पाइपिंग सिस्टम बनाया था कि नहीं? यस सर, बनाया हुआ है प्रोजेक्ट कल तो आपका एसएसटीपी सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं ना। तो आपको वैसे ही बनाना पड़ता है बिल्ज एंड बैलास्ट पाइपिंग सिस्टम। एग्जाम में आता 25 नंबर का बनाने के लिए, तो अकॉर्डिंगली बिल सिस्टम और बैलास्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको सारे डायग्राम भेजेंगे। तो ये आपकी होल्ड ड्रेनेज सिस्टम है कि बिल सिस्टम में होल्ड की ड्रेन्स होती है, जनरल कार्गो में होता है। पानी आ गया, बारिश का पानी आ गया, तो सारा कार्गो सड़ जाएगा, जब ग्रेन लोड किया सड़ जाएगा, तो आपको बिल्जेस को पंप आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके होल्ड बिल्जेस हैं, और इसमें काफ़ी गंदा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये स्ट्रम बॉक्स है, जाली है। तो जाली में क्या है कि कचरा फंस जाएगा, आपकी पंप में नहीं फंस जाएगा। तो जाली स्ट्रम बॉक्स का क्या फ़ायदा है? इट विल प्रिवेंट unwanted material from getting sucked into the pipeline and spoil the pump. यहाँ स्ट्रेनर होता है अंदर में पंप का, और बाहर जाली होती है। तो स्ट्रेनर भी वही काम करता है अंदर का, और बाहर की जाली स्ट्रम बॉक्स भी वही काम करता है। अब आपके जो कॉर्नर्स पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, जो आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस। तो यहाँ आपको बताते हैं कि कैसे आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। ये कॉर्नर में अगर हमने जोड़ दिया तो स्ट्रेस हो जाएगा।
तो या तो हमने इसको सर्कुलर बनाया या एलिप्टिकल बनाया हैच कोमिंग को। एक और डायग्राम दिखाते हैं। ये डायग्राम भी आपका आता है एग्जाम में। तो ये गसेट प्लेट जो है ये यहाँ लगती है और ये एलिप्टिकल हैच कॉर्नर है। एलिप्टिकल का मतलब ये ऐसे घुमा हुआ है, सर्कुलर टाइप का नहीं है। सर्कुलर वाला ये रेडियस वाला, ये वाला एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल का फायदा ये होता है कि अगर हम एलिप्टिकल कॉर्नर्स लेंगे, ये वाला एलिप्टिकल लेंगे, तो हमें इसकी थिकनेस नहीं बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रेंथ कम नहीं होती इसमें। लेकिन अगर हमने रेडियस टाइप का यूज किया हैच कॉर्नर, तो हमें इंसर्ट प्लेट लगानी पड़ेगी इसको थिक बनाने के लिए। तो ये आपका हैच कोमिंग है, ये हैच कोमिंग है। इनके नीचे ये वाले कॉर्नर, नीचे में आपका गसेट प्लेट है, ये वाला गसेट प्लेट। आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस में दो सेक्शंस को जोड़ोगे तो कॉर्नर यहाँ नीचे में क्रैक हो जाएगा। तो हमने यहाँ एक प्लेट लगाई, ये प्लेट लगाई जिससे स्ट्रेस इज स्प्रेड आउट, क्रैक नहीं होगा। हैच कोमिंग को साइड से देखोगे तो यहाँ स्कैलप्स होते हैं डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस कम करने के लिए। यहाँ भी स्कैलप है। ऑफसेट बल्ब प्लेट यहाँ लगी होती है, ये वाली, क्योंकि अंदर के साइड अगर हो जाएगी, ये अगर अंदर में ऐसे रहेगी तो कार को फंस जाएगा। तो बाहर की तरफ स्ट्रेंथ बनाने के लिए ऑफसेट बल्ब प्लेट है, ऑफसेट बल्ब स्टिफनर है, यहाँ लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनर लगा है। ये डेक पे ये हैच कोमिंग लगी और उसके ऊपर हैच कवर है, तो हैच कवर इस पे चलेगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। मैं अपना डायग्राम जरा दिखा दूंगा आपको क्या बनाना है, देन विल डू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये 25 नंबर का डायग्राम एग्जाम में आता है, एमएमडी में आया हुआ, 3-4 बार आ चुका है ये वाला। तो ब्लैक एंड व्हाइट देख लो या कलर देख लो, कलर से समझ लो, ब्लैक एंड व्हाइट बना दो। कलर समझाने के लिए है ताकि कलर आपको अलग अलग दिखेगा। तो ये ऐसे एलिप्टिकल है ये, और ये राउंडेड है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्ज एंड बलास्ट सिस्टम, हैच कॉर्नर्स, ये सब 25-25 नंबर के डायग्राम्स आते हैं एमएमडी में। डायग्राम प्रैक्टिस शुरू कर दो बेटा। बाद में मुश्किल हो जाएगी। ये डेक बना हुआ है और डेक के नीचे आपका ये गर्डर जा रहा है। तो ये वाला जो अथवार्डशिप जा रहा है, बीम है, ये बीम है और ये गर्डर जा रहा है। इसके नीचे लगेगी गसेट प्लेट। और ये हैच कोमिंग 4.5 दिखाया, ये फॉरवर्ड है यहाँ पे। अब हम वापस इस पे आते हैं। और डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस is related with deck opening because 90 डिग्रीज पे अगर कहीं कट मारा गया डेक पे तो कॉर्नर्स पे स्ट्रेस आ जाएगा, शार्प कॉर्नर्स पे। ड्यू टू स्पेसिफिक डिजाइन ऑफ शिप, शार्प कॉर्नर्स आर टू बी अवॉइडेड, अदरवाइज यहाँ क्रैक आएगा, डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस आएगा। Therefore the corners, so either you make it elliptical or circular.
जो सर्कुलर है उसका नाम है रेडियस. Now for circular corners, the corner plate is called insert plate. That insert plate is for increasing the thickness for the remaining plating surrounding the hatch combing to provide strength. क्योंकि जैसी सर्कुलर कॉर्नर्स आते हैं उसकी स्ट्रेंथ एलिप्टिकल कॉर्नर से कम होती है. तो सर्कुलर कॉर्नर्स पे या रेडियस कॉर्नर्स पे इंसर्ट प्लेट होगी, बट इन एलिप्टिकल corners you will not have insert plate. So elliptical corners are used because they do not require increased thickness. और हमारे को स्टील का वेट कम करना है, कॉस्ट कम करनी है, तो हम elliptical corner यूज करेंगे rather than circular openings. So circular opening has more stress concentration than elliptical one. Therefore, to offset, the circular insert plate is of increased thickness. तो इसकी thickness ज़्यादा होगी as compared to elliptical plate. Now, how do you compensate for loss of strength at hatch openings? So to compensate around the openings, material size has to be increased. तो जो भी material लगेगा उसकी thickness बढ़ाएंगे. Structural design has to be better. Square hatch corners are rounded to make it compensate for stresses. Corners को use किया जाता है so that stress concentration corners पे कम हो. तो हमने इसको either radius बनाया या elliptical बनाया. अगर radius बनाया तो we have to have a thicker plate known as insert plate. Elliptical corners पे insert plate की नहीं जरूरत. ये corner की बात कर रहे हैं. So that's the same hatch corners. अब यहाँ जैसे डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस आ जाता है तो हम बुलवर्क राउंडेड कर देते हैं so that crack ना लगे. End of superstructure is gradually tapered off. There is no abrupt change in form to prevent discontinuity stress. अब आता है vertically corrugated bulkhead. हमने corrugated bulkhead पढ़े थे. इसमें अलग अलग टाइप के bulkheads आते हैं. Vertically corrugated bulkhead जिसमें स्टूल प्लेट नहीं है एट द बॉटम. तो ये छोटे टैंकर में यूज होता है इंक्लूडिंग प्रोडक्ट टैंकर्स एंड केमिकल टैंकर्स, जहां वर्टिकली कोरोगेटेड बल्कहेड आती है और नीचे में स्टूल प्लेट नहीं है. ये आपको दिखा दें ये क्या है. ये VC1 है विदाउट स्टूल एट द इनर बॉटम. तो नॉर्मली प्रोडक्ट कैरियर्स में आता है क्योंकि यहाँ आपको स्टूल प्लेट की जरूरत नहीं है. सेकेंड वाला टाइप है VC2 विद लोअर स्टूल, और इसमें अपर एंड लोअर स्टूल दोनों है. ऊपर में भी स्टूल प्लेट, नीचे भी स्टूल प्लेट, और इसमें सिर्फ नीचे में स्टूल प्लेट है. ऑल आर वर्टिकली कोरोगेटेड. सो विथ लोअर स्टूल प्लेट VC2 में arrangement is used for larger ships other than VC1, and this is found in ships exceeding 40,000 deadweight. अब कई जहाजों में अपर एंड लोअर स्टूल दोनों होते हैं वर्टिकली कोरोगेशन में. ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ टैंकर्स और उसमें फिट होता है कोरोगेटेड बल्कहेड्स, एंड अफ्रोमैक्स साइज जो है टैंकर्स का उसमें यूज होता है. ये VC3. अब VC2 and VC3 में the two deck supporting arrangements are described in DS1 and DS2. अब आता है हॉरिजॉन्टली कोरोगेटेड बल्कहेड. हॉरिजॉन्टली कोरोगेटेड बल्कहेड जो है वो इस टाइप का कोरोगेशन आता है साइडवेज. तो ये साइडवेज उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली कोरोगेटेड. तो हॉरिजॉन्टली जो बल्कहेड है इसमें कोरोगेशन ट्रांसवर्स होते हैं. मोस्ट कॉमन इन स्मॉल टैंकर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट कैरियर्स, केमिकल टैंकर्स, वेयर टैंक क्लीनिंग इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. Bulkhead is arranged longitudinally, type HCL. ये वाला bulkhead is longitudinal bulkhead. अब ये किस में होता है? So this is in smaller tankers including product tankers, chemical tankers. यहाँ टैंक क्लीनिंग को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है.
तो अभी के लिए तो आज के लिए बहुत है। बिल्ज कील को नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अभी हम बिल्ज कील की फोटो दिखा देते हैं आपको। ये आपकी बिल्ज कील होती है जो नीचे में रहती है बिल्ज एरियाज में। तो ये इसका काम होता है, जो भी हमारी रोलिंग होती है उसको डैम्पन करना। और दूसरा फायदा क्या है कि अगर ग्राउंडिंग हो तो वो प्लेट टूट जाएगी और आपकी शेल प्लेटिंग को बचा देगी। ये आपकी बिल्ज प्लेट है। इसका स्ट्रक्चर तो अभी डायग्राम समझा दें, थ्योरी बाद में कराएंगे। तो ये आपकी शेल प्लेटिंग है और उसके ऊपर ये बिल्ज कील बनी है, ये वाली ऐसी लगी। तो इसमें एक नॉच बना होता है, कट बना होता है कि अगर टकराएगी तो ये टूटेगा, ये वाली प्लेट बच जाएगी। तो दिस इज योर बिल्ज कील। ये कट इसमें बना होता है, नॉच। जैसे ये सीधी सीधी बनी हुई है, यहाँ नॉच बना हुआ है, कट बना है, सो दैट दिस विल ब्रेक इंस्टेड व्हेनेवर इट इज ग्राउंडिंग, सो विल सेव द मेन स्ट्रक्चर। तो अभी आपका टाइम हो गया, नहीं तो वीडियो दिखाता। अगली बार में आपको बिल्ज कील और उसके वीडियो दिखाएंगे। अभी के लिए आपका 2 मिनट आराम है एंड फिर विल कॉल इट ऑफ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ठीक है, विल कॉल ऑफ टुडे। ओके, आज के लिए बहुत है।